Students, this is Jagdeep Sharma from JPS Academy. So today we are going to start our exercise 7.4 based on the quadratic formula. How to find out the roots of a quadratic equation by using a quadratic formula. Okay. So very first question that I am going to attempt here is this question number 1, third part of your exercise 7.4. So what is the question? This is x minus 1 into 2x minus 1 is equal to 0. This is given to us. How we do it? First of all, we will multiply these two brackets. So it will become x into 2x square minus x minus 2x and plus 1 equal to 0. So this will become 2x square minus 3x plus 1 is equal to 0. Now the first question what they have asked us to find out discriminant only, not the roots, only discriminant. So discriminant, how to find out? The formula for finding out discriminant is b square minus 4ac, where b is minus 3, the coefficient of x, and that is minus 3. A is coefficient of x square, that is 2, and c is constant term, that is 1. So after replacing all these values here, so in place of b I will write minus 3, power 2 means power 2, minus 4 into a is 2 here and c is 1 here. Okay. Now we can calculate this. Minus square is plus, 3 square is 9, minus 4 to the 8, 9 minus 8 is 1. So this is the discriminant. Okay. Similarly, we can find out the discriminant for the fifth part. Here they have given the coefficient of x is p and constant term is q. So likewise we will replace here. B means p square minus 4 into x square coefficient is 1 and q is q. This is the constant part. So this is p square minus 4 into q, 4q. Okay. Now the second question they have given us. First of all, we will have to find out whether the given quadratic equation have real roots or not, and that thing we will check out by finding out the discriminant of the given equation. So how to find out the discriminant? Again the same formula, b square minus 4ac. First of all, we will check the value of d. If the value of d is greater than or equal to 0, okay, means greater than or equal to 0, then it has real roots. If d is less than 0 means negative, then it doesn't have any real roots. Okay, and if it have real roots, then we have to find out those roots by using the quadratic formula. Now see how to do it. The very first part I have solved here. This is 3x square minus 5x plus 2 equal to 0. After replacing the values of b square minus 4ac, here we will put b is minus 5 and 4 into a is 3 and c is 2. So after putting all these values, d comes out to be 1, which is greater than 0. It means it has real roots. Now let the two roots are alpha and beta, where alpha, how to find out the value of alpha? See here. So alpha will be equal to minus b plus square root d, where d is discriminant, upon 2a. After replacing the values of b and d, d we have calculated 1. So square root of 1 is 1. This is minus of minus 5 is plus 5. 5 plus 1 upon 6 means 6 by 6, which is equal to 1. So this is the very first root, that is alpha of that quadratic equation. Similarly, beta can be found out only by replacing this plus sign with minus. So here it will be minus b minus square root d upon 2a, which is equal to minus of minus 5 minus square root 1 upon 2 into 3, 6. So this will be 5 minus 1, which is 6. 4 by 6 means 2 by 3. So this and these are the roots of the quadratic equation. Similarly, you can find for this, nothing different there, only here it is given under root 2. So basically we have the value of b here minus 2 under root 2. After replacing here the value of minus 2 under root 2 whole square, minus 4 into a is 2 and c is 1. So this is 8 minus 8, 0. Again d is equal to 0. If d is greater than or equal to 0, it has real roots. That's why it has real roots. We have to find out alpha and beta. Now when d is equal to 0, we know that both roots are equal.
Why both roots are equal? Because minus b plus square root d, and here it is minus b minus square root d. Now because the value of d here is 0, we are subtracting or adding nothing in b. Okay, so it will remain minus b over 2a minus b over 2a. Okay, these are the roots. So here after replacing this, alpha or beta both will be equal to minus b plus root d upon 2a, and b is minus 2 root 2. So plus this is 0 upon 2 into 2. So this will become 2 under root 2 upon 2 2 is 4. 2 cancelled with 4, this will become under root 2 upon 2. Both the roots are same. Why same? Because d was equal to 0. तो जो भी हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना था वो पार्ट ही 0 हो गया. तो दोनों वैल्यूज़ क्या रही? माइनस बी बाई 2a एंड दिस ऑल्सो माइनस बी बाई 2a. ओके. Now the sixth part is x minus 1 by x is equal to 3 is given. बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ आपको ये x माइनस 1 बाई एक्स को सॉल्व करना है. हेयर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ x. इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3. एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू 3x. 3x को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर ये प्लस में था, 3x इधर आके माइनस हो जाएगा. माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0. सो हेयर आफ्टर रिप्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव कैलकुलेटेड d. d आपके पास में क्या आ गया? 13 विच इज़ ग्रेटर देन 0. जब 13 है, पॉजिटिव वैल्यू है, इट मीन्स इट हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला. ओके, एज वी हैव डन अर्लियर. सिंपली बस हमने वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देना और हमारे पास में वैल्यूज़ आ जाएंगे. ओके. थर्ड क्वेश्चन अ बिट डिफ़िकल्ट. वाई? बिकॉज द इक्वेशन इज़ गिवन इन दिस मैनर. ओके, अभी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है. यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3a स्क्वायर है, एक्स का कॉफिशिएंट 8ab है और कांस्टेंट पार्ट हमारा 4b स्क्वायर है. तो ये हमारी b की वैल्यू आ गई 8ab, ये हमारी a की वैल्यू आ गई 3a स्क्वायर और ये c की वैल्यू आ गई 4b स्क्वायर. तो पहले इसमें d कैलकुलेट आप कर लेंगे. b स्क्वायर माइनस 4ac से यहाँ पे b की वैल्यू 8ab उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारा 3a स्क्वायर और c हमारा 4b स्क्वायर. तो इसको जब हम काउंट करेंगे ये क्या आ जाएगा? 8 स्क्वायर मीन 64, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ा 12 4 ज़ा 48, a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर. 64 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 48 a स्क्वायर b स्क्वायर मीन्स 16 a स्क्वायर b स्क्वायर. यहाँ पे हमारा देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इट हैज़ रियल रूट्स. यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे. अल्फ़ा विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a. तो b की वैल्यू पुट की हमने 8ab प्लस स्क्वायर रूट डी का है 16 a स्क्वायर b स्क्वायर. अगर मैं ये देखूँ तो ये किसका स्क्वायर है? 4ab होल स्क्वायर का. ठीक है, तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का. a किसका स्क्वायर? a स्क्वायर किसका स्क्वायर है? a का. और b स्क्वायर b का. तो 4ab इस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा प्लस 4ab अपॉन 2 इंटू 3a स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू हमारी 3a स्क्वायर है. इट विल बिकम 6a स्क्वायर. इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा माइनस 4ab अपॉन 6a स्क्वायर. कैंसिल किया तो माइनस 2b अपॉन 3a. ऐसे ही अगर हम यहाँ पे d को माइनस रिप्लेस करेंगे साइन, तो ये हमारे पास में माइनस 8ab माइनस 4ab आ जाएगा अपॉन 6a स्क्वायर. सो दिस इज़ माइनस 12ab अपॉन 6a स्क्वायर. और 6 से 12 को कैंसिल करेंगे, इट विल बिकम 2. और b जो है एक a नीचे से कैंसिल हो जाएगा, विल बिकम b अपॉन a माइनस 2b अपॉन a. c है माइनस 2b अपॉन a. फोर्थ पार्ट देखते हैं. देखिए इस तरह से इक्वेशन गिवन है, बहुत ही ईजी है. इस तरफ का पहले एलसीएम लेंगे हम. एलसीएम लेके ये वाला पार्ट जो है हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूँगा x माइनस 7 जो कि 1 से मल्टीप्लाई होके ऊपर न्यूमरेटर में x माइनस 7 आ गया माइनस x प्लस 4 अपॉन दिस इज इक्वल टू 11 बाय 30. इसको सॉल्व किया आपने, बिल्कुल सिंप्लीफाई. 11 से 11 कट गया दोनों तरफ. इधर क्या बचा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 30 और ये दोनों इस तरफ आ गए. तो जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, जिसका कि आप अल्फ़ा और बीटा ईजिली निकाल सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आनी थी कि इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे. दैट आई हैव शोन यू हाउ टू सिंप्लीफाई इट. एंड आफ्टर गेटिंग इट सिंप्लीफाइड
Again the same steps for finding out the alpha and beta. Okay, come on to the last question of this exercise. Fifth you can do by yourself. Now the last question, that is a square b square x square minus this equal to 0. So this is our b along with this minus sign, this complete is b. A square b square is our a and minus 12 a square b square is our c. तो पहले हम d की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे. d आएगा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac. b क्या है मेरा, ये पूरा माइनस साइन को इंक्लूड करके. तो हमारे पास ये आ गया, इसका स्क्वायर करूँगा माइनस 4 इंटू ए है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी है ये पूरा माइनस 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर. तो यहाँ पे ये देखेंगे हम, माइनस का स्क्वायर तो हो गया प्लस, इस पूरे का मैंने स्क्वायर कर दिया, इस पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर, प्लस ये कितना आ जाएगा 4 12 48 ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए 4 एंड बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी 4, माइनस इंटू माइनस प्लस. करेक्ट. इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4 का स्क्वायर 16 बी 4 का स्क्वायर बी 8 प्लस 3 का स्क्वायर 9 ए 4 का स्क्वायर ए 8 माइनस, क्योंकि ये है हमारा फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab हमारी ये टर्म आएगी. यहाँ पे प्लस ये 48 वाली टर्म एज इट इज़. अब यहाँ पे देखिए माइनस 24 है प्लस 48 है, ये वाले टर्म्स पीछे वेरिएबल्स सेम है, तो हम इसमें से ये माइनस करेंगे, आ जाएगा प्लस 24. और अगर इसको देखा जाए तो ये अब आइडेंटिटी किसकी बन गई, यही सेम आइडेंटिटी बट यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया डी. अब हम अगर स्क्वायर रूट डी लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म बचेगी हमारे पास. तो अल्फ़ा निकाला हमने माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a माइनस बी, ये हमारा माइनस बी है. ठीक है, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, प्लस इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा स्क्वायर से स्क्वायर रूट गेट कैंसल्ड एंड दिस विल बी आउटसाइड द अंडर रूट साइन. तो इससे हमारा ये 3a4 कैंसिल हो गया, क्योंकि इसके आगे प्लस था इसके आगे माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और जब हम कटिंग करेंगे तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एल्फा. सिमिलरली फॉर बीटा, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे हमारे इसके साइंस चेंज हो जाएंगे दोनों के, और यहाँ पे अब 4b4 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा एज इट इज़ रहेगा और कैंसिल करके दिस विल बी द वैल्यू फॉर बीटा. ओके, थैंक यू एंड बाय बाय.